क्या है ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था देवशेखर जी? आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि धर्म को हम फेथ से ना जोड़ के देखें, रिलीजन से ना जोड़ के देखें, धर्म को जीने का तरीका या जो संसार को धारण करके रखे, धारयते इति धर्म, उस हिसाब से अगर देखें तो क्या दोनों ने धर्म की रक्षा की? क्या दोनों धर्मी थे? Yeah, thank you. So I would like to first of all I would like to thank you for giving this opportunity. And in English it said that if you give a wrong introduction, it's as good as not giving introduction. So let me introduce myself. So I'm Devshekhar Vishnudas. So I'm project director for ISKCON Ayodhya. On top of that, I just wanted to let you know that I'm part of the same lineage of Lord Ramchandra ji. Oh, okay. So I've also come from a Survanshi Kshatriya clan. And till recently, our forefathers for 500 years they have not wear the turban and shoes. So we are coming from that lineage. So I'm not here just for ISKCON, but also it feel pleasure for us that Lord Ram, who is our forefather or ancestor, or we can say whatever, so he is coming back to his lost glory. So coming back to your question, why is it significant? It's significant because let me ask you this, why was the glory lost? Because Ram too was everywhere, so why was he not there Virajman on his Janmbhumi? If Ram was there in everyone's hearts, why did it happen? And what does this return of Ram Lala to come back and sit where he was always supposed to be Virajman, what does it actually mean for us as people, as Bharat? Yes, so you have asked a very relevant question, and we have to understand the fact that even though Ram itself means who is present everywhere, Lord himself expands the Garbhodakshaya Vishnu, and he goes and sits in every atom. So even though Lord is everywhere, but we have to understand the fact that we are not impersonalist, we are personalist. Okay, so we can all of us we are householders, we have kids, so all the kids are roaming outside, but why do you have to do progeny? Right, we need progeny so that we can call somebody our own. So he's our son. So similarly, even though Lord is 5,000 what happened 500 years back is what it doesn't we can say it was not we should not either it's not actually the person who follows his religion, no religion teaches us we should demolish any others holy place. Correct. But whatever happened was not good. But again, coming back to this, the fact that, Lord Ramchandra is coming back again here is significant because it signifies, it signifies that Lord Ramchandra himself, who have lost somewhere, is coming back and manifesting himself again. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyutthana dharmasya tadatmayam srijamyam. So srijamyam means he manifests himself. So if you correlate with that, he is manifesting himself here again. So it's not we can say it's not very that it's not unrealistic that Lord cannot manifest in this form. Lord can manifest, and we can say Lord have taken avatar once again here. Yeah, because Krishna also says paritranaya cha sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So if I were to ask you that, तो आज कौन से धर्म की स्थापना होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग कॉन्शियसनेस इन भारत? क्या एक परिवर्तन उस लिहाज से आ रहा है जहां भारत अपने आप को फिर पालेगा? एग्जैक्टली एक सिविलाइजेशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम एक सभ्यता है, वो सभ्यता उस सभ्यता का ज्ञान क्या अब हमें हो रहा है? जी बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न है कि धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या है, तो प्रायः धर्म की संस्थापना का अर्थ हम मारकाट समझते हैं। तो मारकाट एक पार्ट है। तो जब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जब प्रकट हुए, एक्चुअली जन्म कहना कई बार जन्म कह देते हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चामी दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सो अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्राकट्य को समझ ले, प्राकट्य का अर्थ भगवान जो है कभी सामान्य बालक की तरह माँ के गर्भ में रह करके रक्त मांस मज्जा के मध्य में नहीं आते, वो जब भी आते हैं वो प्रकट होते चतुर्भुज रूप में। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका मूलभूत उद्देश्य होता है दुष्टों का संहार करना, लेकिन उसके पहले बोलते परित्राणाय साधु नाम। तो साधु हैं जो भक्त होते हैं उनको आनंद देने के लिए। तो जैसे अगर भगवान की लीलाएं ना होती, जैसे राजूदास जी ने कहा, कारपात्री महाराज ने लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया, तो अगर लीलाएं ना हो तो भक्त आस्वादन क्या करेंगे? तो भगवान का मूलभूत उद्देश्य भक्तों को आनंद देना है। राक्षसों को मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। What you have to do? You have to simply get out of this body. Person is dead.
तो उनको मारना नहीं, लेकिन लीलाएं नहीं करेंगे तो उसका आस्वादन भक्त कैसे करेंगे? और भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च ओतम प्रोतम. We have to get engrossed into that. That is what bhakti is all about. So similarly when it comes to dharma, so dharma does not mean कि सिर्फ it's a part of religion. धर्मा religion जो है एक इंग्लिश शब्द है, एंड अगर आप डिक्शनरी में देखें तो religion can be classified as kind of faith. लेकिन धर्म जो है वो फेथ नहीं है. धर्म इज समथिंग विच विल नॉट चेंज. एंड जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, वॉट एवर इक्विपमेंट्स वी ब्रिंग, उसके साथ वी गेट अ मैनुअल, उसके साथ एक हमें निर्देश पत्रिका मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि जीवन को कैसे चलाना है. या ये टीवी है तो उसमें बताया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू रन इट, ऑपरेट करने के लिए. तो अगर उस मैनुअल का पालन करेंगे हम तो चीजें सुचारू रूप से चलेंगी. तो धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या होता है कि भगवान हमें वो नियमावली, वो निर्देशिका बताते हैं जिससे मनुष्य जीवन को हम किस तरह से निर्वहन कर पाए. हिंदी भाषा में 2 शब्द होता है, अनुकरण और अनुसरण. तो भगवान की लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं. और जब हम अनुसरण करेंगे तो भगवान जो धर्म के निर्देश को बताए हैं उस निर्देश पर जब हम चलेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा सुचारू रूप से चलेगा. तो जैसे हम सारे लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं तरह तरह से, लेकिन भगवद गीता जो है एक मनुष्य का मैनुअल है, या रामायण जो है एक मनुष्य का मैनुअल है. तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रक्षति. सो हाउ वन विल गेट पीस व्हेन समबडी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, 3 फैक्ट्स. व्हाट? कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर. तो जो भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को समर्पित करना, भगवान रामचंद्र जी को. ठीक है. यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोपाइटर ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आप वर्तमान समय पे देखिए इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि युद्ध जो चल रहे हैं वो उसका कोई वो यूजलेस युद्ध है, क्योंकि ये जो धरती है ये हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी और आगे भी रहेगी. तो हम नहीं रहेंगे. तो इसका प्रोपाइटर कौन है? भगवान ही है. और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो 3rd पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, दैट लॉर्ड इज द वेल विशर ऑफ एवरीवन. तो हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के लिए है ना, लेकिन अगर हम देखें भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासम ब्रह्म महदियोनि अहम बीज प्रजापिता. आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द एवरी स्पीशीज ऑफ लाइफ. अहम बीज प्रजापिता. आई एम द सीड गिविंग फादर. नाउ व्हेन यू से आई एम द सीड गिविंग फादर, दैट मीन्स व्हाट? लॉर्ड इज कंपैशनेट टू एवरीवन. एंड व्हेन ही केम इन फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम, ही शोड दैट कंपैशन. द ग्रेट एग्जांपल इज जटायु. करेक्ट. सी हाउ जटायु. तो हम कहते हैं भगवान सिर्फ मनुष्यों की योनि में आते नहीं, सारी योनि में आते, सबको प्रेम करते हैं. तो आप देखिए कि वो राम जिन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने एक पक्षी का दाह संस्कार किया, उसे अपने जंघे पर बिठा करके उसका दाह संस्कार किया. तो हम भगवान को, रामचंद्र जी को किसी जाति पंथ इससे नहीं बांध सकते. और जब धर्म की बात करते तो धर्म वो चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती.